other of assaulting and misconduct. What sparked this confrontation? How did a protest over remarks by Union Home Minister Amit Shah on B.R. Ambedkar escalate into a full-blown political clash? And most importantly, what are the implications of this row on the upcoming parliament sessions and the larger political landscape? Stay with us as we break down the details in our today's big story. A major political dispute has erupted in Delhi following a confrontation outside Parliament, leading both the BJP and Congress to file complaints against each other. The dispute centers around allegations of the physical altercations between their leaders, with Union Minister Anurag Thakur leading the BJP's charge, while Congress MPs have filed a counter-complaint. The accusations range from assault to incitement, further deepening the political divide between the two parties. This is a session that is very, dear for everyone, and the main reason being it's the 75th year of Constitution being implemented, being brought into place. And we are celebrating this as this journey of 75 years of glorious journey that has happened. And this journey has happened because of Ambedkar ji, who has been the drafting committee chairman, and he was instrumental in bringing such a great constitution and one of the largest constitution anywhere in the world. He has brought this with all his experience of what he has gone through, what the discrimination he has gone through. With that experience, he made sure that no Indian citizen should face the discrimination. With that thought process, he has got this constitution 75 years back. It is a celebration of constitution. It is a celebration of Ambedkar ji and his life. So when this celebration is going on, every party across, there's no politics in this. Every party should come on board, and every party should participate in this celebration. And there's a discussion also that has happened for 2 days in the Parliament celebrating this and mentioning the greatness of our Constitution by various members of the Parliament. So when this celebration is happening, incidents like this, what has happened today on the steps of the Parliament, is very unforgiving. Very sad to see that on the steps of the Parliament someone is getting injured. This is a session that is very, The confrontation between BJP and Congress spiraled into chaos on Thursday, fueled by a series of escalating events. Both parties accused each other of misconduct and physical assault, with each side presenting their own version of the incident. The situation grew more intense as police complaints were filed, and the Parliament session came to a standstill due to the ongoing row. भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला
नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके वे उसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में The cause of the confrontation traces back to remarks made by Union Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha earlier in the week. His statements about Dr. B.R. Ambedkar, revered figure in Indian politics, were met with strong opposition from Congress leaders. This led to a protest outside Parliament, particularly on Wednesday and Thursday, where the Congress's India Alliance held demonstrations in response. BJP MPs countered the protest, leading to heightened tensions and ultimately physical slashes. दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जो एडमिट हुए। जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था। सारंगी जी की एज थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है। आज सुबह हमारे यहाँ 11:30 बजे दो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जो एडमिट हुए हैं, दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं और उनकी सिचुएशन जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बराबर उनके टेस्ट करा रहे हैं। अभी मॉर्निंग उनका सीटी स्कैन हुआ था दोनों का, हेड का। अभी दोनों का एमआरआई हो रहा है स्पाइन में, क्योंकि बैक में भी दर्द की कंप्लेंट है। एंड जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था, जिसमें स्टिचेस लगाने पड़े। एंड क्योंकि सोकेज हो रहा था तो उनकी ड्रेसिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ रही थी। एंड दोनों का, उनका और मुकेश राजपूत जी का, दोनों को हेड इंजरी हुई थी। राजपूत जी को डिजीनेस की कंप्लेंट थी, एंजाइटी, दोनों का बीपी हाई था। हम लोगों ने मेडिकेशन दिया है। लास्ट जो मैंने राजपूत जी को देखा था तो उनका बीपी अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही था। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। सर, जो इंजरी हुई है वो कैसे हुई है सर? इंजरी जो बताया गया है कि वो पार्लियामेंट में थे, तो सीढ़ियों पे थे और वहाँ कुछ धक्का मुक्की हुई है, कुछ लोगों ने धक्का दिया है जिसकी वजह से वो स्टेप्स पे गिरे और स्टेप्स से उनके सिर टकराए, इसकी वजह से इंजरी। सर, टांके भी लगे हैं, तो कितने टांके लगे हैं? कितने लगे मेरे को नहीं पता है, बट टांके लगे हैं। जो चोट है वो कितनी सीरियस है और क्या लगता है कब तक यहाँ से डिस्चार्ज होने की उम्मीद?
असल में ओल्ड एज है, क्योंकि सारंगी जी की एज थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। एंड सारंगी जी जो है, The physical altercations outside Parliament became a focal point of the dispute. BJP MP Pratap Sarangi accused Congress MP Rahul Gandhi of pushing another BJP MP, leading to injuries. Meanwhile, Congress leaders including Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi claimed that BJP MP had assaulted and obstructed them. As both sides traded accusations, the Parliament session was interrupted, with the matter escalating into a political crisis. शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की, और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। Anurag Thakur, leading a delegation of BJP MPs, filed a formal complaint with the Delhi police accusing Congress leader Rahul Gandhi of assault and incitement. Thakur outlined the specific sections of the law under which the complaint was filed, including charges related to attempt to murder and voluntary causing grievous hurt, further intensifying the political battle between the two parties. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया, तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया?
पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया और जनता के सामने बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए था उसको पूरी तरह से बताया। यही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो हमेशा बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। और बाबा साहब ने जो कहा है, दलित पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उस विचार को लेकर, बाबा साहब के विचार को लेकर चल रही है। और आपने देखा होगा एक दलित परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासी वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और ये जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है भारतीय जनता पार्टी, उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की Speaking to the media outside the Parliament Street police station, Thakur explained the legal basis of the complaint, citing various sections of the Indian Penal Code. Section 109 deals with the attempt to murder, while Section 117 addresses the voluntary causing of grievous hurt. Thakur's statement made it clear that the BJP considered the situation serious and the complaint was a direct response to the alleged actions of the Rahul Gandhi and his role in the altercation. விட்டு வெளியேறு. ஜெய் பீம் ஜெய் ஜெய் பீம் 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 माफी मांगो माफी मांगो नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे करो शर्म करो नहीं सहेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे நாடாளுமன்றத்தை விட்டு வெளியேறு. ஜெய் பீம் ஜெய் ஜெய் பீம் 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 ஜெய் பீம் ஜெய் ஜெய் பீம். According to the BJP's version of events, the incident occurred during a protest by NDA MPs outside Makardwar. BJP has accused Rahul Gandhi of physically pushing 69-year-old BJP MP Pratap Chandra Sarangi, causing him significant injury. The incident escalated when BJP MP Mukesh Rajput also sustained injuries, leading to both MPs being rushed to ICU at Ram Manohar Lohia with head injuries, a move that intensified the claims of the assault. हाउस में नहीं था, इस प्रेशर में नहीं था, तो इसलिए मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही है तो मैं समझता हूं कि सभी मेंबर्स जो हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं, समझदार हैं और उनकी ज्ञान के आधार पे ही, उनकी योग्यता के आधार पे लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। तो ये अचानक से कैसा हुआ, ये बड़ी चिंता का सबब है। अगर कोई भी वार्ता है, चर्चा है, तो वो विचारों के आधार पे हो सकती है, उसमें हाथापाई या धक्के मुक्की कोई जगह नहीं है। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की, तो मैं स्पष्ट आपसे कर दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा है, चाहे वो अर्थशास्त्री के तौर पे हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो संविधान के ज्ञाता के रूप में हो, चाहे महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में हो, चाहे कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हो, और चाहे मैं ये कहूंगा समर्पण में
जो त्याग बलिदान, अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया उन्होंने, उनकी तरफ भी नहीं देखा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हक वंचित समाज महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि बाबा साहब का कद इतना बड़ा कि आज पक्ष और विपक्ष सबको बाबा साहब की बात करनी पड़ रही है। लेकिन मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि बाबा साहब का अपमान इस बात से भी होता है जब आप सरकारी इंस्टीट्यूशन का निजीकरण करते हैं, जब आप उनके सपनों को कुचलने का काम करते हैं, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आते हैं और संघीय ढांचे पे चोट करते हैं, जब राज्यों की शक्ति को कम करते हैं, जब आप तानाशाही पर पढ़ते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान है। जब आप हक वंचित समाज के रास्ते रोकते हैं, ये भी बाबा साहब का अपमान है। और मैं सभी पार्टी को कहूंगा कि वो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते अच्छी बात है, लेकिन जब वो बाबा साहब के विषय में बात करें तो ये बात ध्यान रखें कि देश में, दुनिया में उनके करोड़ों अरबों जो अनुयायी हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब आज सिर्फ किसी गांव गली में की बात नहीं है, देश के हर गांव गली घर तक बाबा साहब है। और सही एक जाति में नहीं है, जिस तरह से उनको एक जाति तक सीमित किया गया, क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पर वो एक जाति में नहीं है, सभी धर्मों के लोगों में कि उनकी जो है वो लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत सब हर जाति धर्म के लोगों मैंने जो है उनके प्रति जो है सम्मान देखा है, उनके विचारों के प्रति जो है उनके मन में जो है भाव देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जाति धर्म तक सीमित है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि फिर